Good afternoon, class 6. Today I am going to teach you a new lesson number 9, adverbs. An adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb. As you know, अपने adjective पढ़ा था, you have studied adjective, that adjective is a word that modifies noun or pronoun in the sentence. In the same way, adverb modifies verb or adjective or another adverb in a sentence. Examples: the book is very interesting, she reached office quite late, Vidhi walks gracefully. Now we will study how adverb modifies verb, ठीक है, modifies adjective or modifies adverb. An adverb modifies a verb. Like, look at these sentences: she works neatly. Now here the word neatly is an adverb and it is modifying the verb work. Okay, modify आप कह सकते हो, उसको explain करना, उसकी व्याख्या करना, ठीक है, कि how the work done, how she has done the work neatly, उसने काम अच्छा किया, neatly किया, तो the word neatly is modifying the verb works. Okay, so neatly is an adverb and यहाँ it is modifying the verb works. Neatly tell us how she works and always. सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ ऑलवेज टेंस, वो हमेशा टेंस रहता है, ठीक है, तो ऑलवेज टेल्स अस हाउ ऑफन ही इज़ टेंस, माने कितना वो टेंस रहता है. ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन कितना मतलब फ्रिक्वेंटली वो टेंस रहता है, कि कभी कभी रहता है, तो इसमें दिया ऑलवेज, तो ऑलवेज इज़ एन एडवर्ब. ओके, नेक्स्ट आपका आ गया, एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन ऑब्जेक्ट. लुक एट दिस सेंटेंसेस: ही इज़ सो लीनियंट, the house is too small. Now here the words so and to are adverbs and these adverbs are modifying adjective lenient and small. ठीक है, lenient and small are adjective and इनको जो word modify कर रहे हैं कि कितना lenient है, so lenient, बहुत lenient है, ठीक है, तो so is an adverb. The house is too small, घर कितना छोटा है, बहुत छोटा है, too small. Each highlighted word in a sentence tells us more about the adjective, hence so and to tell us how lenient he is and how small the house is. Okay, next, an adverb modifies another adverb. Look at these sentences: do not eat too fast, she works quite slowly. Here too and quite tells us more about the adverbs fast and slowly. Fast and slowly आप जो आपके एडवर्ब्स हैं उनके बारे में और बताया जा रहा है, कितनी जल्दी खाना खाता है, कितनी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, टू फास्ट, बहुत जल्दी, ठीक है. नाउ स्लोली, स्लोली इज़ ऑलरेडी एन एडवर्ब, अब इसको वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, क्वाइट इज़ एन एडवर्ब, ठीक है, तो ये दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है. समटाइम्स इट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स ऑल्सो. So there are several types of adverbs. The major types are adverbs of manner, adverb of time, adverb of frequency, adverb of place and adverbs of degree. Okay, now first we will study about adverb of manner. Adverbs of manners tells us about the way something happens, माने किस तरह से क्रिया की जा रही है, ठीक है, इस चीज़ को मॉडिफाई करता है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, how the things happens. They can answer the question how. Most verbs of the manners are formed by adding ly to adjectives. ज़्यादातर adverbs जो बनाए जाते हैं adverb of manner, वो adjectives में ly ऐड करके बनाए जाते हैं, ठीक है. Now look at this example: we must solve the problem patiently, the work was completed easily. easy का easily हो गया, patient का patiently हो गया, come fast. So these are the adverb of manners. Some adverb of manners are nicely, gladly, quickly, badly, foolishly, etc. These are usually placed after the direct object if there is one, otherwise they are placed after the verb. मतलब या तो ये आपके वर्ब सेंटेंस में जो वर्ब हैं, जैसे कम फास्ट, कम के बाद कम वर्ब है, उसके बाद आ गया एडवर्ब, ठीक है, मैंने इस तरह से अगर वर्ब्स के बाद आते हैं, या फिर सेंटेंस में अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, जैसे अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं सेंटेंस में, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
क्या होता है, वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ब जो है वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट्स भी दिए रहते हैं सेंटेंस में। जैसे अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में आपने पढ़ा था कि वर्ब्स कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। जिनमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो जो वर्ब में आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे द प्रिंसिपल गेव द गिफ्ट टू मी, द प्रिंसिपल गेव द गिफ्ट टू मी, प्रिंसिपल गेव व्हाट, गिफ्ट, तो गिफ्ट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम, तो आंसर हुआ मी, तो मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से मतलब आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बाद हम लोग जो है एडवर्ब लिखते हैं, या तो डायरेक्टली वर्ब के बाद लिखा जाएगा सेंटेंस में, या फिर आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बाद एडवर्ब्स प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, दे आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ़ देयर इज़ वन, अगर है तो, अदरवाइज दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर समथिंग हैपन्स। प्लेस मतलब किस जगह पे हो रहा है, किस जगह पे चीज़ें घट रही हैं, हो रही हैं। इट टेल अस द प्लेस ऑफ एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर। ठीक है, ये बताता है कि एक्शन किस प्लेस पे हुआ है, एंड क्वेश्चन इसमें जो अराइज होगा वो होगा वेयर, कहाँ पर एक्शन किया गया है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए जो हम लोग एडवर्ब्स यूज़ करते हैं, दे आर एवरीवेयर, देयर, नोवेयर, हियर, समवेयर, फार, नियर, आउट, अप, इन, डाउन, beside, away, below, further, etc. Look at these sentences. The thieves ran away. The thieves ran where? क्वेश्चन क्या रहा है, where, कहाँ गए, away, तो away is an adverb. His house is very neat. ठीक है, उसका घर साफ है, तो neat is an adverb. Okay, so these are the 2 kinds of adverbs which I explained to you, adverb of manner and adverb of place. The rest of the adverbs I will explain you in next video. So read it up to here. If you have any problem you can ask me in live classes. ठीक है, thank you children.